प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 25 जून 2020। कलर्स ऑफ द रेनबो, ये U3 का दूसरा ये U3 की पोर्शन में ये सबक है। इससे पहले एक सबक है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग, वो हमने पढ़ लिया है। अब ये हम दूसरा सबक उसका पढ़ रहे हैं, कलर्स ऑफ द रेनबो। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, 92 पेज नंबर आप देखिए। हम पहले इसकी मॉडल रीडिंग करेंगे। Colors of the rainbow. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water from the awning of the window. The clouds had cleared, and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were sporting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze, and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun had come out. Sun came out. Papa ji, see the singing of Gutta Gutti, Muni was saying, clinging to me. Where is it, daughter? I asked. There up in the sky, multicolored, replied Muni. Is that the swing of Gutta Gutti? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it, if not theirs? Who told you? Grandma told us. I see, then it must be so, I said, looking at the rainbow in the sky. Papaji, I too want a swing. You can have this one. I tried to put her off. This doesn't help. Why should I take something that is not mine? I began wondering how wise the little one was. Muni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. She left me after a while out went out to play with her brother and sisters. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of a Gudda Gudi and occurred when the sun came out immediately after the rain. Seven colored, splendiferous and lovely, and I thought I could become a Gudda and sway on the swing. And my grandmother would tell me, you are a Gudda, all right, and when your Gudi comes, then you will sway on this swing together. Then my Gudi came, I was married, and I learned that my Gudi too had similar dreams, that when she would get married, her Gudda and she would sway together. But now we were grown up, and our dreams of swaying together, seated on the seven colored swing, has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long, and God knows of how many hues. Every day its colors changed. Father had passed away, but mother was still with us. Two of us with four kids with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing, and that convolutions I had to undergo to meet the expenses, giving tuitions sometimes and sometimes studying at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. प्यारे बच्चों, ये जनाब वाला हमारा एक सबक है कलर्स ऑफ द रेनबो। तो इसको हम अब समझने की कोशिश करेंगे। कलर्स कहते हैं रंग को, और रेनबो कहते हैं आसमान में जो कोसे कज़ा पड़ता है, जिसको दनक भी कहते हैं। दनक या कोसे बारिश के बाद जो पड़ता है उसको रेनबो कहते हैं। तो ये एक सबक लिखा है डोगरी जबान में, तो इसका फिर ट्रांसलेशन किया है शिवनाथ ने लिखा है, और चंचल शर्मा ने इसका फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्या ये कह रही है। The rain had just stopped. I was looking out of the window. हाँ, बारिश अभी अभी रुकी हुई थी और मैं खिड़की में बैठा हुआ बाहर देख रहा था, मैं बाहर का नजारा कर रहा था। Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. तो इतने में से खिड़की के ऊपर चौकाट से पानी का एक कतरा नीचे गिर गया। The clouds had cleared and the sun had also come out. बादल जो थे, बारिश के दौरान जो बादल जो थे वो अब दूर हो चुके थे, और अब ये जो है सूरज ये दोबारा निकल चुका था, धूप दोबारा आ चुकी थी। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो उस वक्त का जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
आई वाज वाचिंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर लास्ट इन थॉट। मैं क्या कर रहा था, मैं यही नज़ारा दे रहा था, मैं देख रहा था बाहर देख रहा था और मैं नज़ारा में लुत्फ अंदोज हो रहा था और मैं इसमें बिल्कुल क्या हुआ था, खोया हुआ था। जस्ट आउटसाइड द विंडो वायर सम चिली प्लांट्स, और इस खिड़की के बाहर इसके कुछ मिर्चों के कुछ छोटे छोटे पौधे थे। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल एंड वायर स्पोर्टिंग रेड चिलीज। ये पौधे जो थे ये बड़े हो चुके थे और इनके साथ सुर्ख रंग की मिर्चें जो थी वो लगी हुई थी, इनके साथ जुड़ी हुई थी। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वायर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स, ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स। तो ये इन मिर्चों के में क्या हो रहा था, बारिश के ऊपर से बारिश के कतरे जो थे ऊपर वाले पत्तों से नीचे वाले कतरों पर गिरते थे और वो इस तरह से रोल होते थे और नीचे गिर रहे थे और मैं इसी में खोया हुआ था, इसी नज़ारे को मैं देख रहा था। ऑल माई अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स। मेरी ये अटेंशन, ध्यान जितना भी था वो इन मिर्चों के दरख्तों पर, पौधों पर था और इस पर जो बारिश के कतरे इस पर थे उन पर था। ए लाइट ब्रीज वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। बाहर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। ब्रीज हुआ हवा, थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा जो होती है, बाद नसीम, वो चल रही थी। आई रेपड द बेड शीट अराउंड मी टाइटली वाइल सिटिंग ऑन द कॉट। मैंने अपने इर्द गिर्द क्या लिपेटा था, मैंने अपने आप को किस में लिपेटा था, बेड शीट में, यानी एक कपड़ चादर या एक चादर मैंने अपने इर्द गिर्द बांधी हुई थी, उसमें मैं बैठा था। और एक काट हुआ छोटी सी चारपाई और मैं एक चारपाई पर बैठा हुआ था। The kids were playing eight play, और जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। गोइंग आउट एंड कमिंग इन, ये बच्चे कभी कमरे के अंदर आ रहे थे और कभी कमरे से बाहर निकल रहे थे। दे वर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज बट आई वॉज मोर और लेस ऑब्लिवियस टू इट। ये बच्चे अंदर बाहर जब कर रहे थे तो इस दौरान वो बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल बेखबर था। मेरा ध्यान जो था इनकी तरफ नहीं था, बल्कि मेरा ध्यान बाहर के नजारों पर था। द चिली प्लांट्स वायर डांसिंग इन द ब्रीज एंड वाटर ड्रॉप्स वायर फॉलिंग फ्रॉम देम। जो मिर्चों के छोटे छोटे पौधे थे, ये हवा जब चलती थी तो ये झूलते थे और इन पर जो पानी के कतरे थे वो नीचे गिर रहे थे। स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स वायर मूविंग टू एंड फ्रो इन द स्काई। और आसमान में क्या हो रहा था, बादल के छोटे छोटे टुकड़े कभी आगे आ रहे थे, कभी पीछे हट जाते थे, कभी आगे आ रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे। Sometimes they covered the sun and it became cloudy and sometimes the sun came out. तो कभी ये बादलों के टुकड़े जो थे ये सूरज के सामने आ जाते थे और सूरज की रोशनी रोक देते थे, और कभी सूरज इनसे बाहर निकल जाता था और दूर दोबारा आ जाती थी। पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुडी। पापा जी, इतने में मुझे आवाज दी किसी ने, क्या कहा, पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुडी। देखिए गुड्डा और गुड्डी का झूला। हाँ, देखिए गुड्डी और गुड्डे का झूला। ये कौन कह रहा है, मुनि वाज सेइंग क्लिंग टू बी। मुनि यानी इसकी बेटी, इसकी जो ये जो अपनी कहानी कह रहा है, इसकी बेटी जिसको ये मुनि कहता था, वो मुनि आकर इससे चिमट गई, इसको पकड़ लिया मुनि ने और कहने लगी, पापा जी देखिए गुड्डा और गुड्डी और गुड्डा का झूला। वायर इज इट डॉटर आई आस्क्ड। मैंने इसको पूछा, बेटी कहाँ है, गुड्डा और गुड्डी का झूला कहाँ है। There up in the sky multicolored replied मुनि। मुनि ने जवाब दिया, आसमान में है और उसके बहुत सारे रंग हैं, मल्टीकलर्ड यानी उसके बहुत सारे रंग हैं। इज देयर द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी। क्या ये गुड्डा गुड्डी का झूला है, क्या ये आसमान में जो रंगदार चीज जो है कमान, ये गुड्डी और गुड्डा का झूला है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ अनायंस। उसने कुछ परेशान होकर मुझे जवाब दिया। देन हुज इज इट। फिर ये किसका झूला है, अगर ये गुड्डा गुड्डी का नहीं है ये फिर किसका झूला है। इफ नॉट डियर्स, अगर ये गुड्डा और गुड्डी का झूला नहीं है फिर किसका है। हु टोल्ड यू। मैंने अपनी बेटी से पूछा, आपको ये किसने कहा कि ये गुड्डा और गुड्डी का झूला है। ग्रैंड माँ टोल्ड अस। ग्रैंड माँ यानी मेरी दादी ने मुझे कहा कि ये गुड्डा और गुड्डी का झूला है। आई सी देन इट मस्ट बी सो। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, ये फिर होगा। आई सेड लुकिंग एट द रेनबो इन द स्काई। तो मैंने नजर डाली बाहर, तो बाहर एक धनक कोसे कजा जो था वो आसमान में था। पापा जी आई टू वांट ए स्विंग। अब इसकी बेटी से कहती है कि पापा जी मैं भी एक झूला चाहती हूँ, मुझे भी एक झूला चाहिए। यू कैन हैव दिस वन। आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। मैंने उसको बहलाने के लिए, उसको खामोश करने के लिए कहा कि आप ये झूला जो बाहर है गुड्डा गुड्डी का आसमान में, इसे आप ले जाइए। दिस डजंट हेल्प। लेकिन इससे काम नहीं चला। वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज नॉट माइन। मैं वो चीज क्यों ले लूं जो मेरी नहीं है। ये जो झूला है ये गुड्डा और गुड्डी का है, मैं क्यों इसको ले लूं। ये कौन जवाब देती है, ये इसकी बेटी कहती है।
I began wondering how wise the little one was. तो मुझे अब हैरानी होने लगी, मैं सोचने लगा कि ये बच्ची जो है ये कितनी दाना है, कितनी अक्लमंद है. Muni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. इसके बाद गुड्डी मुझसे और बातें करने लगी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों की तरफ कुछ भी न रहा. मैं उसे हाँ हूँ कर रहा था, लेकिन मैं सुनता नहीं था ये क्या कह रही है, बल्कि मैं बाहर के नज़ारे जो है उनको देख रहा था. मैं अपनी सोच में खोया हुआ था. She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. कुछ वक्त के बाद वो वहां से चली गई और बाहर अपने बहनों और भाइयों के साथ खेलने में मशगूल हो गई. I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the singing of Gudda and Gudi and occurred when the sun came out immediately after the rain. अब मुझे याद आ गया कि जब मेरी दादी हुआ करती थी वो भी मुझे कहती थी कि ये बाहर जो ये चीज जो है ये गुड्डा और गुडी की क्या है, झूला है, और ये तब बनता है जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो उस वक्त ये झूला बन जाता है, यानी कि कौसे कजा कहते हैं ये. और 7 कलर्ड स्प्लेंडिफरस एंड लवली, ये 7 रंगों का था, बहुत शानदार था और बहुत प्यारा था. एंड आई थॉट आई कुड बिकम ए गुड्डा एंड स्वे ऑन द स्विंग, और मैं उस वक्त जब मैं बच्चा हुआ करता था मैं सोचता था कि मैं एक गुड्डा बनूंगा और मैं इस पर क्या करूंगा, स्विंग, मैं इस पर झूलूंगा. एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, और मेरी दादी जी वो मुझे कहा करती थी, यू आर ए गुड्डा ऑल राइट, तू एक गुड्डा है, बिल्कुल ठीक है. एंड व्हेन यूर गुड्डी कम्स, और जब तुम्हारी गुड्डी आएगी, then you will sway on this swing together, फिर आप दोनों इस पर क्या करना, आप और आपकी गुड्डी जो आएगी आप इस पर झूलना. then my गुड्डी came, तो कुछ वक्त हुआ उसके बाद मेरी गुड्डी आ गई, यानी कि इसकी शादी होगी, इसकी बीवी आ गई. आई वाज, इसकी दादी का इशारा इसकी बीवी की तरफ था, गुड्डी का जिसको वो कह रही थी. आई वाज मैरिड एंड आई लर्नड दैट माई गुड्डी टू हैड सिमिलर ड्रीम्स, मेरी शादी हो गई और मुझे पता चला कि मेरी गुड्डी यानी इसकी बीवी जो थी उसकी भी ऐसे ही ख्वाब हुआ करते थे. बट नाउ वी वर ग्रोन अप एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्विंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 कलर्ड स्विंग हैज रिमेन्ड ए ड्रीम ऑन दी, लेकिन अब हम बड़े हो चुके थे और हमारा ये जो इस झूले पर चढ़कर झूलने का जो ख्वाब था ये अब ख्वाब ही हो चुका था, ये हकीकत होने वाला नहीं था. नाउ we had in front of us the swing of life very long and God knows of how many hues. अब जब हमारी शादी होगी अब हमें उस झूले के बदले जिंदगी का आगे जो हमारी जिंदगी थी, हमारा मुस्तकबिल था, उसका झूला था, और उसके अल्लाह बेहतर जाने उसके कितने रंग थे. कुछ रंग बहुत अच्छे थे, कुछ रंग क्या थे, बहुत ही कड़वे थे, यानी कि वो ऊपर नीचे वाली जिंदगी थी, परेशानी और खुशियों वाली जिंदगी थी. एवरी डे इट इज कलर्स चेंज, ये हमारी जिंदगी का जो झूला था, यानी कि हमारा मुस्तकबिल जो हम अब जिंदगी जी रहे थे शादी के बाद, इसके रंग हर रोज बदलते थे. फादर हैड पास्ड अवे बट मदर वाज स्टिल विद अस, मेरा वालिद साहब जो था वो पास्ड अवे, वो गुजर गया था, लेकिन माँ अभी भी जिंदा थी. 2 of us with 4 kids, हम 2 भी थे, माँ भी थी, हम 2 भी थे, और हमारे 4 बच्चे भी थे. विद द सेम लिमिटेड सैलरी, और मेरी तनख्वाह जो थी वो बहुत कम थी बिल्कुल. The kids were growing up and expenses were increasing, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से बड़े हो रहे थे और हमारे खर्चे आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहे थे. And what convolutions I had to undergo to meet the expenses, और मुझे इन अखराजात को पूरा करने के लिए क्या क्या दाव पेश करने पड़ते थे. गिविंग ट्यूशंस, मैं कभी ट्यूशन पढ़ाया करता था, समटाइम्स टाइपिंग एट सम शॉप, और कभी कभी ये टाइप मशीन पर टाइप करता था, यानी कि जो काम भी मुझसे हो सकता था मैं वो करता था, इसलिए कि मेरे खर्चे जो हैं वो पूरे हो जाएं. सम डेज पास्ड कंफर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हार्ड अप, कुछ दिन अच्छी तरह से गुजरते थे, लेकिन हमारी जिंदगी के अक्सर जो दिन थे वो ज्यादा सख्त थे, क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा थे, आमदनी बहुत कम थी, जिंदगी के बहुत सारे रंग थे, बहुत सारी परेशानियां भी थी, खुशियां भी थी, तो इसमें हम एक एक दिन अपना गुजार रहे थे, यानी कि हम जिंदगी के इस झूले पर अब झूल रहे थे. तो बेटा हम एक और तालीम करेंगे इसको. The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. Just outside the window were some chili plants. They had grown quite tall and were sporting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants.
All my attention was centered on the raindrops. A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. Papa ji, see the swimming of Gudda Guddi, Muni was saying, clinging to me. Where is it, daughter? I asked. There up in the sky, multicolored, replied Muni. Is there the swimming of Gudda Guddi? I asked. She shot back with a touch of annoyance. Then whose is it, if not theirs? Who told you? Grandma told us. I see, then it must be so. I sat looking at the rainbow in the sky. Papa ji, I too want a swing. You can have this one. I tried to put her off. This doesn't help. Why should I take something that is not mine? I began wondering how wise the little one was. Muni kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. She left me after a while and went out to play with her brother and sisters. I was thinking that my father, grandmother also used to tell me that it was the swing of Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. 7 colored, splendiferous and lovely. And I thought I could become a Gudda and sway on the swing. And my grandmother would tell me, you are a Gudda, all right, and when your Guddi comes, then you will sway on this swing together. Then my Guddi came, I was married, and I learned that my Guddi too had similar dreams. That when she would get married, her Gudda and she would sway together. But now we were grown up, and our dreams of swaying together seated on the 7-colored swing has remained a dream only. Now we had in front of us the swing of life, very long, and God knows of how many hues. Every day its colors changed. Father had passed away, but mother was still with us. Two of us with 4 kids with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing, and what convulsions I had to undergo to meet the expenses, giving tuitions sometimes and sometimes typing at some shop. Some days passed comfortably, but most of the time we were hard up. बेटा यहाँ कुछ ये अल्फाज इनके माने हैं. काट काट का छोटी सी चारपाई जो होती है इसे खटिया भी कहते हैं. खटिया. ऑब्लिवियस हो गया बेखबर. क्लिंग हो गया चुमटना पकड़ना. एनॉयंस हो गया नाराजगी या परेशानी. स्विंग हो गया हिलना या झूलना. सवे भी हुआ झूलना. स्विंग हुआ झूला. ह्यू हुआ रंग, और कंक्लूशन हो गया पेज दाव. स्प्लेंडिफरस हो गया शानदार. तो बेटा आपसे निहायत ही अल्तमास है ये आप ये माने जो है ये याद करने की कोशिश करना, और इस सबक को 4-5 बार पढ़ना, और जो पिछले सबक हमने पढ़े हैं वो भी पढ़ना. तो हम आज U3 की पोर्शन पढ़ रहे हैं. इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.